तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यस्सु मैंने शिफा पाई है। गाइए मेरे साथ। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हम्द सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हम्द सना गाऊं। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यस्सु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। Lord Jesus, we bless your holy name. Thank you for rescuing us from the evil clutches of the enemy. Thank you for delivering us from the snare of the fowler. Thank you for plucking us out of the domain of darkness. Thank you for delivering us from the miry clay of sin and iniquity, trespasses, and all kind of uncleanness. Thank you for washing us in your blood. Thank you for pouring out the precious water of your word and cleansing us, Lord. Hallelujah. We pray, Lord, that you would cleanse us in a fresh manner. प्रभु, हम तेरे हुजूर में आते हैं आज की संध्या। हमें अपने लहू से धोइए। अपने खून से धोइए प्रभु जी। हालेलुया। दिया जीने को रंग रंग रंग, रूह पाक किया संग संग संग, चौपान बनावो एक अजब खुशी अनोखा मसा दिल जान बनावो। वो संग लिया मोहे संग लिया यीशु ने, दिया अपना जहन दिया अपना मसा, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने, दिया अपना जहन दिया अपना मसा,
मोहे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you for pouring out your precious blood. Lord, when we were so deeply plunged in the miry clay of sin, debauchery, and all kind of uncleanness. Thank you for pouring out your blood and the water that oozed out of your side, the fount, the precious fount of your glorious blood that has cleansed us. Thank you for removing my guilt and my shame. Thank you for restoring us on the inside. There is no condemnation on the inside. Father, thank you that each genome in our DNA and our RNA rejoices in you, Lord. Hallelujah. Therefore, I say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Hallelujah. 3.5 trillion DNA cells, or perhaps even more, who knows? Science doesn't know everything that God created. Hallelujah. But let everything that is in me praise the name of the Lord. Hallelujah. Father, I join with this beautiful, glorious, gigantic, and vast creation that continually sings a melody before you. Hallelujah. The night unto the night declares your majesty. The day speaks unto the day. Thank you, for there is no speech, there is no language, but yet the profound voice resonates in every little particle that you created in the universe. Lord God, you set a tabernacle for the Son. Like a bridegroom, he would come from one edge of the pavilion and would go to the other edge of the pavilion. Thank you, Father. Thank you, we bless you. Father, we magnify you for such vast, sacred, pure knowledge is beyond a mind, beyond a comprehension. Thank you, Father, that you have given us the Holy Spirit whereby we understand. Lord, from one fraction of glory, we ascend to the next dimension of glory. From faith to faith, from strength to strength, we go because of the blood of Yahushua HaMashiach is working in a majestic way on the inside of us. Thank you, Lord, that your blood is resequencing our DNA and is transforming our RNA and all the information that is stored on the inside of us. Thank you for causing a massive download of the fresh revelation that is descending from your throne, from your glory. And thank you for equipping us with your wisdom that is coming from above. Lord, we lean not on our own understanding. Lord, we do not bank upon our own wisdom. Lord, we thank you that there is vast glory like a mighty river descending from above, and you are downloading in on the inside of us, Father, and you're leading us with that glorious light, the light that you are imparting now. I pray, Father, teach your people the wisdom. Give them the keys. Lord, let them see that there are keys to find access to the eternal now, where God is working deep things right now. God is working deep things. Even though God Almighty hid what he was about to do in the earth as he sent this plague, this vicious virus is a plague sent from above. And he did not disclose it to the prophets because he found there were many who were just doing pure merchandising with the anointing of the Lord. Therefore, God is really put off with so many so-called prophets and apostles. He didn't share his mind. He didn't share his heart with many. But Lord, there is a remnant. There are precious apostles. There are precious prophets. There are precious saints and sages. The remnant, Lord, with whom you share your heart. I pray, Lord, you will raise up even greater remnant, people who will walk in purity, people who will walk in righteousness, people who will love you with upright heart. Lord, people who will pursue you on higher dimension every day of their life. People who will not love money, people who will not love fame and name, people who will not try to accumulate the worldly glory, people who will not love their lives, but they will shower their lives at your feet. And they will love you above anything else in this universe.
Thank you for raising such people, Lord. I pray, Lord, that whatever I teach, whatever you plant in my heart, put in my mouth, may each word prepare such people, Lord. Raise up such remnant. Lord, through this teaching, you may forge, you may prepare, you may equip, Lord, with necessary tools and skills. Lord, the remnant, the precious bride, that shall live for you, that shall walk in uprightness, holiness, and purity, and that shall live for you. खुदावंद जो उस खिदमत तूने मुझे दी है, उस खिदमत से ऐसे लोगों को खड़े कर खुदावंद जो तुझसे मोहब्बत करें, पैसे से नहीं, और जो अपनी जानों को, अपनी ज़िंदगियों को प्यारा ना समझें, बल्कि तेरे लिए वार दें अपनी ज़िंदगियों को। अपने खादम की खिदमत से ऐसे झुंड खड़े कर इस देश में और पृथ्वी के अलग अलग देशों में, ताकि प्रभु तुझसे प्यार करने वाली एक आर्मी खड़ी की जाए। लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम, वी ब्लेस योर नेम, लॉर्ड जीसस। Thank you, Lord, that you have kept us alive in these turbulent yet very amazing times in the earth. Thank you for causing us to have participation in your end time move in the earth. Thank you, Lord, that there is a fresh wave coming. And Lord, you are looking for sons and daughters who will not merchandise your anointing, who will not prostitute the sacred for the mundane. Hallelujah. Thank you, Father. We lay our hearts at your feet. We lay our lives at the foot of the cross. Hallelujah. Hallelujah. तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यस्सु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यस्सु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे। Lord Jesus, I pray that you will deploy the angelic host across the airwaves and the frequency that will carry your word. Every listener, wherever they are, in India or other parts of the world, Lord, I pray that you will speak your heart, your mind. Lord, that you will impart this word supernaturally, and people will do Shema. They will hear and they will obey you. Shema, they will hear and they will obey you. We hear your word and we obey your word, Lord. हालेलुया, तेरा धन्यवाद राजा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। हम तेरे वचनों को सुने और तेरी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। प्रभु जब कहता है इज़राइल मेरी आवाज़ सुन, शमा शब्द है जिसका मतलब प्रभु की आवाज़ को सुने और प्रभु की आवाज़ को माने। हालेलुया। हियर एंड ओबे, सुने और माने प्रभु यहोवा की आवाज़। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अब सबको जय मसीह की। आप जितने लोग अभी ऑनलाइन हो, अगर आप सचमुच में प्रभु की हजूरी के भूखे हो तो अपनी बाइबल पकड़ लो, क्योंकि हम परमेश्वर की हजूरी में पूर्ण गंभीरता से जाते हैं। हम खेल नहीं खेलते प्रभु के साथ। अपनी बाइबल पकड़िए जल्दी से। और मैं चाहता हूँ अगर आप नोट्स बनाते हैं, अपने नोट्स बनाइए, परमेश्वर के कलाम को सीखिए। केवल आके हल्का सा सुन के ऐसे निकल मत जाइए। सुनिए परमेश्वर के कलाम। आपके जीवन में इस कलाम से, जिसका मैं अभी आपको बांटने जा रहा हूँ, इससे कीमती आपके जीवन में और कोई चीज़ नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? इस कलाम से कीमती आपके जीवन में और कुछ भी नहीं है। आपका करियर, आपका भविष्य, आपके जीवन के जितने वर्ल्डली परसूट्स हैं, नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे बाद में। अभी डेजी वीएस हैं, वो प्रार्थना की विनती भेज रहे हैं। उनके पति की सैलरी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इज शी ऑनलाइन, डेजी वीएस? डू यू सी हर? इज शी ऑनलाइन? वी विल प्रे फॉर हर, हालेलुया, इन अ वाइल। तो सबसे पहले मैं आपको प्रभु का वचन, मैं चाहता अपनी अपनी बाइबल खोलें और सीखें यहोवा का कलाम। हालेलुया। निकालिए सबसे पहले दूसरे इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स और उसका 18 अध्याय। सेकंड क्रॉनिकल्स 18 अध्याय। हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय। आपको मालूम पुराने नियम में फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल्स दो पुस्तकें हैं जो असल में एक ही थी पहले, और फर्स्ट किंग, सेकंड किंग्स दो पुस्तकें हैं। और कई बार अगर आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कई अकाउंट्स, कई नैरेटिव सिमिलर हैं इसके अंदर, एक जैसे हैं। परमेश्वर ने अलग अलग दृष्टिकोण से इन्हें लिखा है। एक किंगली पर्सपेक्टिव से लिखा है, राजाओं के पर्सपेक्टिव से, और एक प्रीस्टली पर्सपेक्टिव से लिखा है, याजकों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। अगर परमेश्वर एक बात को अपने वचन में दो बार जगह देता है, इसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए गए हैं दोनों में। जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में अलग अलग दृष्टिकोण दिए गए हैं। आपको मालूम, मत्ती, मरकुस, लूका को थियोलॉजी में सिनॉप्टिक गॉस्पेल बोलते हैं। सिनॉप्टिक, ऑप्टिक, सिनऑप्टिक, एक दृष्टि से देखना। ऑप्टिक्स का मतलब जहाँ से ऑप्टिकल वर्ड निकलता है। तीनों ने यीशु मसीह को एक दृष्टि से देखा, मत्ती, मरकुस, लूका ने। लेकिन यूहन्ना सिनॉप्टिक नहीं है, यूहन्ना की गॉस्पेल अलग है। खैर, आज मैं आपको यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 18, दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय। और बड़े ध्यान से प्रभु के वचन का अध्ययन करना है हमने। नाउ जेहोशाफाट हैड रिचेस एंड ऑनर इन अबंडेंस एंड जॉइंड अफिनिटी विद एहब। सुनिए, जेहोशाफाट एक राजा है जो, आप वचन को पूरी तरह पढ़ेंगे, एक बड़ा अच्छा राजा है। प्रभु से प्यार करता है, प्रभु के मार्गों पे चलता है, प्रभु से प्रीति करता है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा मानता है, प्रभु के पीछे चलता है। इसलिए वचन में लिखा है हैड रिचेस एंड ऑनर इन अबंडेंस। परमेश्वर ने उसे धन, दौलत और सम्मान दिया बहुतायत से। जो प्रभु के पीछे चलेगा, प्रभु की आज्ञा मानेगा, प्रभु के लिए जिएगा, परमेश्वर उसे रिचेस भी देंगे और ऑनर भी देंगे। धन, दौलत और सम्मान से भरेंगे। ये प्रभु के पीछे चलने के बाय प्रोडक्ट हैं। ये मुझे इसका प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रॉस्पेरिटी का। समझ रहे हैं आप? जब मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, प्रभु की सेवा करूँगा, प्रभु की वाचा के अनुसार जीवन गुजारूंगा और परमेश्वर को प्रसन्न करूँगा, तो रिचेस, धन, दौलत और सम्मान मुझे मिलेगा। ये बाय प्रोडक्ट है, ये आपको मिलेगा मिलेगा। हालेलुया। श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। सचमुच में करुणा और भलाई जीवन भर मेरा पीछा करेंगे।
क्यों? क्योंकि मैं यहोवा के पीछे चलता हूँ। यहोवा मेरा चौपान है, वो मेरा गडरिया, मेरा शेपर्ड है। तो इसका अलग से प्रचार करने की जरूरत नहीं है। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज गोइंग टू डू दिस फॉर यू, गॉड इज गोइंग टू डू दिस फॉर यू, गॉड इज ब्रिंगिंग, ऐसे मुझे चिल्लाने की, शाउट करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये सिखाना है, यहोवा के हुक्मों के संग चिपट जाओ, यहोवा के कलाम को अपने अंदर बसा लो, यीशु मसीह को पहन लो, यीशु मसीह के संग पवित्र जीवन जियो, पाप, अधर्म, बदकारी, गंदे कामों का त्याग करो और प्रभु के पीछे चलो। ये सब बरकतें अपने आप तुम्हें मिलेंगी। प्रभु कहता है ये आशीषें तुम्हें मिलेंगी और तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। ब्लेसिंग, I do not have to just, give you an extra package for the blessing. And I don't have to start prophesying for you and, speaking all lofty words. And you say, I receive it, Papa. I receive it, Papa. I don't have to do all that wonder. If I teach you that you take the word of Yahweh deep down in your heart, if I teach you that you take the word and live the word, that you walk in the commandment of God, that you keep the statutes and decrees, that you hear him and obey him, that you honor his covenant, that you walk in holiness and purity and uprightness, riches and blessing and honor will be the byproduct. They will fall upon you. Hallelujah. Goodness and mercy shall never depart from you. Wherever you would go, goodness and mercy will follow you. So these prosperity preachers, they take these things out of the context and try to extra package, which is the reward of you walking with the Lord. इसके लिए अलग से कोई मुझे आपको पैकेज बना के देने की ज़रूरत नहीं है। ये राजा ने प्रभु की सेवा की, प्रभु के पीछे चला और प्रभु ने इसको ऑनर दिया, प्रभु ने इसको रिचेस दी। और कैसे दी? बहुतायत से दी। बहुतायत की बरकत आपको देगा प्रभु, अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे। मैं आपको ये नहीं सिखाने जा रहा हूँ कि अभी अकाल आ गया है तो सोना खरीदो, चांदी खरीदो, फलाने प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करो, फलानी चीज़, ये आई डोंट हैव टू टीच दीज थिंग्स। मुझे आपको ये सिखाना है, यहोवा के कलाम से चिपट जाओ तो ये सब चीज़ें आपके पास आएंगी। लेकिन इस राजा ने क्या किया? ये धर्मी राजा है, ये प्रभु का प्रेमी है, प्रभु के हुक्मों की पालना करता है, लेकिन इसके जीवन में कमज़ोरी क्या है? ये गलत लोगों के संग संगति करता है। पढ़िए पहला वचन, दूसरे इतिहास 18 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। हिंदी में, मेरे पास हिंदी की बाइबल नहीं अभी मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, पंजाबी की बाइबल इसमें से पढ़ता हूँ। 18 का पहला वचन यहाँ सुने। यहोशाफाट दा धन अते इज्जत बहुत सी अते उसने अहाब नाल रिश्ता गंढिया। हालेलुया। यहोशाफाट के पास बहुत धन और सम्मान और धन की बहुतायत थी, लेकिन उसने अहाब से रिश्ता जोड़ लिया। अहाब कौन है? एक दुष्ट राजा है जिसकी पत्नी कौन है? इज़ाबेल है। इज़ाबेल एक दुष्ट औरत है जिसने पूरे इज़राइल को, उत्तरी राज्य को यहोवा के पीछे चलने से रोका है, जिसने बाल देवता की ऊंचे स्थान बना दिए इज़राइल में, जगह जगह बाल के मंदिर बनाए और अश्तरोथ की पूजा करवाई। द बेल एंड द ग्रोव, ये दो टर्म्स हैं बाइबल में। बेल एंड द ग्रोव, बालीमों की पूजा और पेड़ों के नीचे शैतानों की पूजा। ये काम इस स्त्री ने इज़राइल से करवाया और इससे इस धर्मी राजा ने रिश्ता जोड़ लिया। और अब पढ़ें। And after certain years he went down to Ahab in Samaria, and Ahab killed sheep and oxen for him in abundance and for the people that he had with him, and persuaded him to go up with him to Ramoth Gilead. अब क्या किया इस राजा ने? मैंने आपको बताया था कि ये जो राजा यहोशाफाट था, इसने गलत लोगों से संगति की। इसको इज़राइल के राजा, ये यहूदा का राजा है, इसको इज़राइल के दुष्ट राजा से संगति नहीं करनी चाहिए थी। इसने इज़राइल के दुष्ट राजा से संगति की, अलायंस फॉर्म की। आपस में ये बोला होगा, अरे हम सब एक ही हैं। आप कई लोगों का ऐसा एजेंडा, वी आर वन इन क्राइस्ट, हम मसीह में एक हैं। बेशक आपकी शिक्षा शैतानी है, बेशक आपका जीवन चरित्र शैतानी है, फिर भी हम मसीह में एक है।
ऐसी एकता करने का यत्न इस जगत में किया जा रहा है, हमारे देश में भी किया जा रहा है। मसीहों की एक ऐसी एकता हो, एक्यूमेनिकल यूनिटी, जिस एकता ऐसी एकता है, कई मैं सुनता हूँ साझा सम्मेलन, मसीह सम्मेलन, मतलब आपकी शिक्षा शैतानी है, गलत है, कुछ भी है, लेकिन हम सब एक हैं। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है हम सब एक हैं? कैसे हो सकता है बताइए मुझे। रोशनी का अंधेरे के संग कोई मेल नहीं है, समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन ऐसी यूनिटी, ऐसी शारीरिक यूनिटी इकट्ठा करने की, एक सोशल गैदरिंग, आत्मिक गैदरिंग नहीं है, एक सोशल गैदरिंग करने का प्रयत्न किया जा रहा है पूरे विश्व में। रोमन कैथोलिक चर्च उसे स्पीयर हेड कर रही है। वो मुस्लिम लोगों से भी, सब धर्म के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दैट दे वांट टू ब्रिंग। तो इस अच्छे राजा ने दुष्ट से संगति की। मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो संदेश सुने हों, इस राजा अहाब और इज़ाबेल, इथबाल की बेटी है ये, इथबाल की, और टायर और साइडन का राजा है वो, जहाँ शैतानों की, दुष्ट आत्माओं की पूजा की जाती है, बालीमों की, निम्रोद और सेमरामिस और तम्मूज की पूजा की जाती थी बेसिकली वहाँ पे, बाबुल के धर्म की। वो पूजा पद्धति को इज़ाबेल इज़राइल में ले आई, उत्तरी इज़राइल में, और उत्तरी इज़राइल का आत्मिक पतन होना शुरू हो गया। जगह जगह बाल के टेम्पल बनाए गए, ग्रोव की पूजा की गई ट्रीज़ के, वृक्षों के नीचे, और इज़राइल अधर्म के लिए प्रेरा गया, जनाकारी, हरामकारी, गंदे कामों के लिए प्रेरा गया, और परमेश्वर का कोप इज़राइल के ऊपर भड़का। और आपको मालूम, 850 नबी थे जिनको सरकारी खजाने से सैलरी दी जाती थी। 850 झूठे नबी थे बाल के, जिनको सैलरी दी जाती थी सरकारी खजाने से, उत्तरी इज़राइल के, और वो अहाब राजा के लिए झूठी नबूवतें करते थे। इज़राइल क्यों यहोवा को छोड़ के बाल के पीछे गया? क्योंकि बाल के झूठे नबियों ने ऊपर से आग बुलाई थी। जब आग आते देखी इसराइलियों ने, तो उन्होंने बाल के आगे घुटने टेक दिए। इसीलिए एलिया, खुदा के सच्चे बंदे ने, एलियाहू उसका नाम है, मेरा परमेश्वर इलोहीम यहोवा है, उसने चुनौती दी बाल के झूठे नबियों को पहाड़ के ऊपर जाके, और कहा कि अब आग बुला के दिखाओ। जब एक सच्चा नबी खड़ा हो गया, आग बंद हो गई। हालेलुया। वो आग आती थी, इसीलिए इज़राइल उनके पीछे गया, इसीलिए एलिया ने उन्हें चुनौती दी आग बुलाने की। फिर एलिया ने सनातन काल के परमेश्वर, बनी इस्राएल के रक्षक, सृष्टि के स्वामी यहोवा के नाम की प्रार्थना की, और स्वर्ग से आग आई। हालेलुया। और जितना हज़ारों मन पानी डाला गया था, पानी को जला दिया, आग ने भस्म कर दिया, और जगवेदी की कुर्बानी भस्म कर दी, सब कुछ जगवेदी को भस्म कर दिया उस आग ने। तब सारा इज़राइल मुंह के बल गिरा और कहने लगा, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। एलिया के नाम का मतलब है एलियाहू, मेरा परमेश्वर इलोहीम यहोवा है। आपका परमेश्वर कौन है? बालीम है। ये राजा ने, एक धर्मी राजा ने दुष्ट राजा से दोस्ती घड़ी है। कई बातें हैं, अरे हम सब एक हैं, आओ हम सब इकट्ठे हों, हमें एकता रखनी चाहिए, यूनिटी रखनी चाहिए, अरे भाई हम सब मसीही हैं। ऐसी ही धारणाएं होंगी, ऐसी ही विचारधाराएं होंगी। तो क्या हुआ कि ये राजा, जो धर्मी राजा है, जो प्रभु यहोवा का भय भी मानता है, ये अहाब से मिलने के लिए गया। तो अहाब ने क्या किया? बहुत ज़बरदस्त पार्टी दी, बहुत ज़बरदस्त पार्टी दी। और पार्टी के पीछे मकसद क्या था? वो यहोशाफाट को मनाना चाहता था कि हम लड़ाई लड़ने चलें असीरिया से, रामोत गिलियद में, इसलिए पार्टी दी। अब सुने, अहाब king of Israel said unto Jehoshaphat king of Judah, Will thou go with me to Ramoth Gilead? And he answered and said, I am as thou art, and my people as thy people, and we will be with thee in the war. देखिए, वो खा रहा है, बढ़िया बढ़िया खाने पकवान पक रहे हैं, वो खा रहा है अहाब के साथ बैठ के। अहाब उसी समय पूछता है, क्या तू हमारे संग चलेगा रामोत गिलियद लड़ने के लिए? तो यहोशाफाट क्या कहता है? अरे भाई, मैं भी तेरी तरह हूँ, तू मैं और मैं तू हैं,
हम एक ही हैं, मेरे लोग तेरे लोग हैं, हम तेरे संग लड़ाई में चलेंगे। इस राजा ने क्या किया, जो प्रभु को जानता है, पहली बात इसने गलत मनुष्य से संगति की, फिर इसकी रिश्तेदारी हो गई। हिंदी की बाइबल में लिखा समधियाना, ये शब्द जो है ना जॉइंट अफिनिटी, वो हिंदी में है समधियाना। क्या हुआ कि अहाब, यहोशापात ने अहाब से दोस्ती की, तो यहोशापात का एक बेटा था यहोवाश, यहोवाश की शादी इसकी बेटी से हो गई जिसका नाम था अथलिया। मैंने आपको मैसेज दिया 2 दिन उसके ऊपर। वो इतनी दुष्ट औरत थी जिसने सारे इजरायली दाऊद के बीज को मरवा डाला। वो पूरे इज़राइल को ख़त्म करना चाहती, उसके अंदर शैतान वास करता था। वो परमेश्वर के सच्चे बीज का नाश करना चाहता था। परमेश्वर ने अदन के बाग में वायदा किया था कि औरत का बीज शैतान के बीज के सर को कुचलेगा। वो उसके अंदर शैतान था, वो परमेश्वर के वायदे को तोड़ के परमेश्वर को झूठा साबित करना चाहती थी। लेकिन परमेश्वर ने एक बालक को, जोआश को बचा लिया, 1 महीने के बच्चे को, बाकी सारे मार दिए उसने। क्यों? क्योंकि इस राजा ने जिसका नाम क्या है, यहोशापात, इसने गलत दोस्ती की, गलत जगह अपने बेटे की शादी की, और पूरे इज़राइल के ऊपर श्राप आया अथलिया के कारण। जो बालों की और जो ग्रोब की पूजा उत्तरी इज़राइल में होती थी, वही दक्षिणी इज़राइल में आ गई। जिस तरह उत्तरी इज़राइल गुलामी में चला गया 722 बीसी में, वैसे ही दक्षिणी इज़राइल भी गुलामी में चला गया, क्योंकि वही पाप इन्होंने भी करना शुरू कर दिया। तो ये राजा ने, यहोशापात ने प्रभु से नहीं पूछा, एकदम उसे वचन दिया हम जाएंगे। तो पढ़ें इसका 4था वचन, एंड यहोशापात सेड अनटू किंग ऑफ इजराइल, इंक्वायर आई प्रे दी एट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टुडे। क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ बात बाकी है। हालांकि इसको प्रभु अपने आप को कमिट करने से पहले प्रभु को पूछना चाहिए था, लेकिन ये उससे कहता है इंक्वायर आई प्रे दी एट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टुडे, प्रभु से पूछें। Therefore the king of Israel gathered together of prophets 400 men and said unto them, Shall we go to Ramoth Gilead to battle, or shall we forbear? And they said, Go up, for God will deliver it into the hands of kings. Hand of kings. King. 400 झूठे बाल के नबी नबूवत कर रहे हैं। किसके लिए? अहाब के लिए। जाओ राजा, हालेलुया, प्रभु आपके साथ है, फायर फायर फायर, रिसीव इट, जैसे आजकल चलता है ना, ऐसे चल रहा था, झूठी नबूवत की। तो 6 वचन पढ़ें। यहोशापात सेड, इज देयर नॉट ए प्रॉफिट ऑफ द लॉर्ड बिसाइड्स दैट वी माइट इंक्वायर ऑफ हिम। यहोशापात धर्मी है, प्रभु के मार्ग जानता है, प्रभु की हजूरी जानता है। 400 बाल के झूठे नबियों ने नबूवत की कि जाओ, यहोवा तुम्हारे संग है, तुम जयवंत होंगे, हालेलुया। लेकिन यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ पे कोई यहोवा का नबी नहीं है? देखिए, बेशक गलत जगह उसने रिश्तेदारी जोड़ी है, गलत जगह दोस्ती की है, गलत लोगों के बीच में बैठ के पार्टी कर रहा है, पर उसे फिर भी कुछ बातें मालूम हैं। तो क्या लिखा आगे, 7 वचन, द किंग ऑफ इजराइल सेड अनटू यहोशापात, देयर इज येट वन मैन बाय होम वी मे इंक्वायर ऑफ द लॉर्ड, बट आई हेट हिम। पर मैं तो उससे नफरत करता हूँ। एक है नबी, पर मैं तो भाई नफरत करता हूँ उससे। अहाब नफरत करता है सच्चे नबी से। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती। पहली बात तो ये मेरी बातें हैं ही नहीं, ये यहोवा की बातें हैं भाई, पसंद आए या ना आए, हजम हो या हजम ना हो, ये सत्य वचन है यहोवा के। राजा हेट करता है, कहता है मैं उसे नफरत करता हूँ। फॉर ही नेवर प्रोफेसाइज गुड अनटू मी बट ऑलवेज ईवल। वो मेरे लिए कभी अच्छी भविष्यवाणी नहीं करता। एक नबी है जो आ रहा हूँ तेरे घर में आ रहा हूँ, काले रंग का गेट है, दरवाज़ा है, फलाना है, बरकत आ रही है, ये आ रहा, तेरी बरकत आ रही है, तेरे को रियल एस्टेट मिल रही है, तेरी नई जॉब खुलने जा रही है, तेरा एक नया कारोबार होने जा रहा है और वीज़े लगने जा रहे हैं। ऐसा नबी नहीं है ये सच्चा नबी है, उसका नाम है मिकाया। ये राजा कहता है वो मेरे लिए बुराई बोलता है, क्योंकि ये राजा है ही बुरा है, दुष्ट है, बदकार है, शैतानी मार्गों पे चलता है। क्या कहता है? वो मेरे लिए बुरा बोलता है। द सेम इज़ मकाया द सन ऑफ अमला, अमला का बेटा मकाया है। एंड यहोशापात सेड, लेट नॉट द किंग से सो। राजा ऐसा ना बोले,
यहोशाफाट नहीं चाहता कि मकाया के विषय में गलत बोले राजा। तो क्या लिखा है, एंड द किंग ऑफ इजराइल कॉल्ड फॉर वन ऑफ हिज ऑफिसर्स एंड सेड एंड सेड फेच क्विकली मकाया द सन ऑफ इमला। उसने अपने एक अधिकारी को भेजा और कहा, जाके मकाया को मेरे लिए लेकर आओ। एंड द किंग ऑफ इजराइल एंड यहोशाफाट किंग ऑफ जूडा सैट ईदर ऑफ देम ऑन हिज थ्रोन, अपने सिंहासन पे बैठ गए, क्लोथ्ड इन द रोब एंड दे सैट इन ए वॉइड प्लेस। अब देखें ध्यान से, हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या लिखा है यहाँ पे, कोई लिख सकता है हिंदी में? दूसरा इतिहास 18 का 9 वचन, दूसरा इतिहास 18 का 9 वचन। यहाँ पंजाबी में लिखा है, इजराइल का पातशाह तो यहूदा का पातशाह यहोशाफाट आपो अपनियां गद्दियां के उत्ते पातशाही बस्तर पहने हुए एक पेड़ विच, यहाँ सही लिखा है, हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या लिखा। यहाँ पे हिब्रू वर्ड है गोरेन, सुनिए ध्यान से, क्या वर्ड है, क्या शब्द है यहाँ पे? हिब्रू शब्द है गोरेन। हालेलुया। गिमेल रेश एंड नोन सफ़ीत, गिमेल रेश नोन सफ़ीत, गोरेन। आपको मालूम ये वर्ड का मतलब क्या? गोरेन का, गोरेन का मतलब होता है थ्रेशिंग फ्लोर। पंजाबी में पिड़ लिखा है। ये वो जगह होती है भाई और बहनों जहाँ पे गेहूं में से भूसा अलग किया जाता है। ये वो जगह होती है जहाँ पे अनाज को काट के थ्रेश किया जाता है, उन्हें मारा जाता है फसल को, और जब फसल को मारा जाता है, कुटाई की जाती है, उसमें से भूसा अलग किया जाता है। उस जगह आके बैठे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है इसराइलियों के लिए, जिसे वर्ल्ड प्लेस अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन हिब्रू वर्ड है गोरेन, जिसका मतलब है थ्रेशिंग फ्लोर। कौन सी जगह है? जहाँ पे दानों, पंजाबी में कहते हैं दाणियां नूं छट्टिया जाता है। हालेलुया। क्या किया जाता है? छट दिया जाता है। यीशु मसीह कहते हैं लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 31 वचन में, यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, शमौन शमौन, शैतान ने तुझे मांगा कि तुझे छज, जैसे छज होता है ना जिसमें दाने छट्टे जाते हैं, शैतान तुझे छटना चाहता था, तेरे अंदर से भूसा निकालना चाहता था शैतान, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। ये जो थ्रेशिंग फ्लोर है, ये जो पेड़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। एक वचन मैं आपको देना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन। सुने क्या लिखा है, ओदी तुंगली ओदे हत्थ विच है ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੂ, ਪਰ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਣ वाली नहीं है। हिंदी में पढ़ें क्या लिखा है, मत्ती 3 अध्याय और उसका 12 वचन। सुनिए ध्यान से भाई और बहनों, सुन लीजिए। यहाँ लिखा है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ क्या लिखा है, whose fan is in his hand, he will thoroughly purge his floor। ये फ्लोर में बैठे हैं सभी। he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner, but he will burn the chaff with the unquenchable fire। when you are in the threshing floor, all the chaff out of you is going to be removed। God is concerned with the pure harvest। परमेश्वर को शुद्ध फल चाहिए, और इस जगह बैठे हैं ये, कहाँ? पेड़ में। पंजाबी में लिखा है थ्रेशिंग फ्लोर में बैठे हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है, गोरेन है, गिमेल रेश एंड नून। ये बहुत अद्भुत है। ये हिब्रू में अगर आपको मैं बताऊं, गिमेल का मतलब होता है जैसे एक इंसान घर से बाहर जा रहा है, गोइंग आउट टू मेक अ लिविंग। इट्स अ मैन लीविंग द हाउस इन सर्च ऑफ लिविंग दैट ही may bring food for his wife and children, that is gimel। and resh
रश एक बहुत ही स्ट्रेंज वर्ड है, और नुन जो है वो सफ़ीत है। नुन सफ़ीत, नुन की फाइनल फॉर्म है। नुन का मतलब होता है सीड, बीज। बीज की सफाई की जा रही है गोरेन में, भूसा निकाला जा रहा है, भूसा निकाला जा रहा है। उस जगह पे पहुँचे हैं और राजा अपने सिंहासन पे बैठे हैं, लेकिन जहाँ पे भूसा निकाला जाता है और गेहूं को अलग किया जाता है, उस जगह नबी बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है इसका इसका 9 वचन में फिर से पढ़ता हूँ। एंड द किंग ऑफ इजराइल एंड Jehoshaphat king of Judah sat either of them on his throne, clothed in their robes, and they sat in a void place, which is in Hebrew gorain, which is threshing floor. कहाँ बैठ गए राजा लोग सिंहासन लगा के? जहाँ पे गेहूँ अलग किया जाएगा और भूसा अलग किया जाएगा। जजमेंट की जगह है ये। यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह गेहूं को अलग कर रहा है और भूसे को अलग कर रहा है। भूसा जलाया जाएगा भाई और बहनों, गेहूं उसके बान में इकट्ठा किया जाएगा। अब ये समय आ गया कलीसिया के लिए सच्ची शिक्षा का, सच्ची तालीम का, लोगों को सच्चा जीवन, पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए जीने के लिए यहोवा अलग कर रहा है। हालेलुया। इस जगह पे बैठे, वॉइड प्लेस गोरेन में, एंट्रेंस ऑफ द गेट ऑफ समरिया, ऑल द प्रॉफिट्स प्रोफेसाइड बिफोर देम। नबी वहाँ पे नबूवत कर रहे हैं। अब क्या लिखा 10 वचन में? एंड ज़ेडेकिया सन ऑफ केनाह मेड हिज हॉर्न ऑफ आयरन एंड सेड दस सेथ द लॉर्ड, विद दीज दाउ शेल्ट पुश सीरिया अनटिल दे बी कंज्यूम्ड। तो एक नबी खड़ा होता है, ज़ेडेकिया, झूठा नबी है, और क्या कहता है? लोहे के सिंग ऊपर उठा के कहता है कि ये लोहे के सिंग हैं राजा, इनसे तू सीरिया को हरा देगा बुरी तरह, ख़त्म हो जाएंगे वो। एंड ऑल 11 वचन, ऑल द प्रॉफिट्स प्रोफेसाइड सो, गो अप टू रमोथ गिलियद एंड प्रॉस्पर, फॉर द लॉर्ड शैल डिलीवर इट इनटू द हैंड ऑफ द किंग। सारे झूठे नबी झूठी नबूवतें कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? प्रोफेसाय पापा चल रहा है इधर, प्रोफेसाय पापा, रिसीव इट ऐसे यल कर रहे होंगे वो। ये सब झूठे नबी हैं, झूठी नबूवतें कर रहे हैं कि राजा जा, तुझे विजय मिलेगी। फिर क्या होता? 12 वचन, एंड द मैसेंजर दैट वेंट टू कॉल मकाया स्पेक टू हिम सेइंग, behold the words of the prophets, declare good to the king with one assent. Let thy word therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good. जो लोग, ये नबी कहाँ बैठे हैं भाई और बहनों? जहाँ गेहूं से भूसा अलग किया जाता है, लेकिन काम उल्टा करने हैं। भूसे के संग सब कुछ इकट्ठा करने हैं। ये मिलावटी सेवा है, ये झूठी सेवा है, ये मिलावटी झूठा कलाम है। इनको यहोवा, इनसे यहोवा बोलता नहीं, इनसे यहोवा बातें नहीं करता, यहोवा इनके संग नहीं रहता। यहोवा ने इनके मुंह के शब्दों में कोई सामर्थ नहीं रखी है। यहोवा ने इनके दिल में अपना कलाम नहीं डाला, यहोवा ने इनके मुंह में अपना कलाम नहीं डाला। यहोवा इनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, बल्कि यहोवा इनकी प्रार्थनाओं से घृणा करता है। इनके मार्ग कुटिलता से भरे हैं। ये अभिषेक को, ये प्रोफेसी करते हैं पैसे के लिए, धन के लोभ के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम की महिमा के लिए। ये भावी बोलते हैं, यहोवा की रूह से नबूवत नहीं करते। ये झूठे नबी हैं, ये फ्रॉड हैं, ये झूठी शिक्षा देने वाले हैं। देख लीजिए 400 से ज़्यादा बैठे कहाँ हैं? थ्रेशिंग फ्लोर में। उस जगह बैठे हैं जहाँ गेहूं से भूसा अलग किया जाता है, लेकिन उस जगह, ये जगह जजमेंट की जगह है। आपको मालूम, मैंने थ्रेशिंग फ्लोर पे आपको एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया है, बल्कि 2 मैसेज दिए हैं, सुनिएगा, वो फेसबुक पे हैं। थ्रेशिंग फ्लोर में कलीसिया खड़ी है इस समय यीशु मसीह थ्रेशिंग फ्लोर में है। मत्ती 3:12 पढ़ लीजिए। वो भूसे को, जिसे तूड़ी बोलते हैं हम पंजाबी में, अलग कर रहा है। ये कोरोना वायरस इसलिए आया है कि भूसे को गेहूं से अलग किया जाए। ये यहोवा ने भेजा है। झूठे नबियों की मत सुनिए, खोलिए अपनी आंखें, अपना दिल, अपनी बुद्धि,
परमेश्वर से मांगे, वो कलाम खोले आपको, वरना लोग रह जाएंगे, प्रभु आएगा, आगमन में उठाए नहीं जाएंगे। ये चौड़े मार्ग के लोग हैं जो चौड़े मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं। और ये लोग जाके खुदा के सच्चे नबी से क्या कहते हैं कि जितने नबी हैं वो दरबार सजा के बैठे हैं, वो बढ़िया बढ़िया नबूवतें कर रहे हैं। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज गोइंग टू गिव यू द डबल पोर्शन ऑफ द अनॉइंटिंग। पढ़ लो भाइयों, देखो 2019 में दिसंबर महीने में ये झूठे नबी सारे, इंडिया के भी और विदेशों के भी, ये नबूवतें कर रहे थे 2020 इज गोइंग टू बी अ गोल्डन ईयर, 2020 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ डबल ब्लेसिंग, 2020 is going to be a year of breakthrough, 2020 is going to be a year when you realize your dreams, 2020 is going to be a year when you cross over, your blessing are going to be poured down from heaven। ऐसे झूठी नबूवतें कर रहे थे ये लोग, पूरी नहीं हुई। मैंने बहुत नबियों को, उनकी नबूवतों को परखा। कलाम कहता है नबूवतों को परखो, सिर्फ नाम मत देखो। बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत बड़े हैं, बहुत हज़ारों की भीड़ है, बड़े फॉलोअर पीछे हैं, वी लव अवर लव फलानी मिनिस्ट्री, लव ढमकानी मिनिस्ट्री, फैन ऑफ फलाना पास्टर फलाना। डोंट गो आफ्टर, ये बेबीलोन की बातें हैं सारी। ये खुदा के सच्चे नबी के मुंह में शब्द डाल रहे हैं कि ये बोलना, सच मत बोलना। कड़वा लगता है, पास्टरों को चुभ जाती हैं बातें, क्योंकि सत्य है ना प्रभु का। अच्छा नहीं लगता। बढ़िया बढ़िया बातें बोलो, एकता की बातें करो, सब मिलके करें। वो भी जैसी नबूवत कर रहे हैं वैसी आप भी करो, एकता को बना के रखें। वन लॉर्ड, वन बैप्टिज्म, वन फलाना, वन। परमेश्वर के कलाम को ट्विस्ट करते हैं लोग। 400 नबी नबूवत कर रहे हैं, मकाया जी आप भी उनकी तरह नबूवत करना, ये उसके मुंह में शब्द डाल रहे हैं। पढ़ रहे हो 12 वचन। एंड द मैसेंजर दैट वेंट टू कॉल मकाया स्पेक अनटू हिम सेइंग बिहोल्ड द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट्स डिक्लेयर गुड टू द किंग विद वन असेंट। वो सब इकट्ठे होके कह रहे हैं राजा को, आपने भी यही बोलनी है। God is going to bless you, God is going to anoint you, God is going to give you visa for countries, God is going to give you a new plot, God is going to give you another real estate, another business blessing is coming, another breakthrough is coming। ये प्रोफेसी करते हैं। झूठे नबी लोगों को वो देते हैं जो लोग चाहते हैं, सच्चा नबी लोगों को वो देता है जो लोगों के लिए यहोवा की ओर से है। सच्चे नबी लोनली होते हैं, झूठे नबियों की 400 की टोली होती है, उनकी एसोसिएशनें होती हैं जी बहुत, फलानी एसोसिएशन, ढमकानी एसोसिएशन। सच्चे नबी की कोई एसोसिएशन नहीं होती। ये उससे कह रहे हैं, वो सारे एक मन होके एक की बढ़िया बातें बोल रहे हैं राजा को। लेट दाई वर्ड देयर फॉर बी आई प्रे दी बी लाइक वन ऑफ देयर्स। तू भी उनकी तरह बोलना, एंड स्पीक दाउ गुड, और अच्छा बोलना। सुनो, ये कह रहे हैं झूठे 400 नबी के चेले चपाटे सच्चे खुदा के बंदे पे दबाव बना रहे हैं। क्या लिखा आगे 13 वचन। एंड मकाया सेड एज द लॉर्ड लिवेथ इवन व्हाट माय गॉड सेथ दैट आई विल स्पीक। सच्चे नबी को डर नहीं है किसी का, सच्चे नबी का कुछ नहीं आप कर सकते। सच्चे नबी के संग लश्कर चलते हैं, अग्निमयी रथ होते हैं, अग्निमयी घोड़े, और यहोवा के आग के दूत होते हैं उनके अंग संग। उनसे उलझ के बैंड बजेगा आपका, क्योंकि आप लोग वो हो जो थ्रेशिंग फ्लोर में बैठ के 400 लोग झूठी नबूवतें कर रहे हो। तो क्या लिखा 14 वचन। एंड व्हेन ही वाज कम टू द किंग, किंग सेड अनटू हिम मकाया शैल वी गो टू रामोथ गिलियड टू बैटल और शैल आई फॉरबेयर। क्या जाएं हम रामोथ गिलियड में लड़ाई करें या हम ना जाएं? वो भी ये कहता है। तो क्या लिखा है? हालेलुया। मैं सुबह भी इसी टेक्स्ट पे और हम अध्ययन करेंगे, बहुत कुछ है अभी, आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन सुनिए क्या कहता है वो। एंड ही सेड गो ई अप एंड प्रॉस्पर एंड दे शैल बी डिलीवर्ड इनटू योर हैंड। मकाया भी उन्हीं की तरह नकल कर रहा है। जाओ, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत, आपका भला होने जा रहा, यहोवा आपके साथ है, आज वो तुम्हें बरकत दे देगा, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आगे भाग जाएंगे, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा का उद्धार देखो। बहुत आयतों को ट्विस्ट करके बताते हैं भाई।
वो भी यही कह रहा है। तो क्या होता 15 वचन, द किंग सेड टू हिम, हाउ मैनी टाइम्स शैल आई एडज्यूर दी दैट दाउ से नथिंग बट द ट्रूथ टू मी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। राजा कहता है, मैं तेरे से बेनती करता हूँ कि तू मुझे क्या बता, सच बता। हालेलुया। ये कौन पूछ रहा है? ये यहोशापात पूछ रहा है, क्योंकि यहोशापात एक धर्मी राजा है। उसके दरबार में, उसके राज्य में सच्चे नबी रहते हैं, लेकिन उसने समधियाना जोड़ लिया है गलत बंदे से। बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियां हैं भाई। ओदी ओदी फलाने दी मेरी जड़ी साली है फलाने पास्टर नाल विआही है, मेरे जो फलाने रिश्तेदार हैं वो उसके समधी हैं, वो उनकी उनके संग रिश्तेदारी, इसलिए मेरे मुंह पे टेप लगी, मैं सच नहीं बोल सकता। रिश्तेदारियां हैं। आपको मालूम, अभी हमारे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में एक टर्म चल रही है, नेपोटिज्म, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं भाई भतीजावाद। पॉलिटिशियंस के ऊपर भी आरोप लगते हैं नेपोटिज्म के। ये नेपोटिज्म सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है चर्च लीडरशिप को। जब एक पास्टर सही चीज़ के संग खड़ा नहीं होता और सत्य नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि उसका जो साला है वो वहाँ का पास्टर है, उसकी जो बहन का फलाना रिश्तेदार है वो ढमकानी जगह पास्टर है। तो आपकी फैमिली लॉयल्टी, आपके परिवार के प्रति आपकी वफादारी परमेश्वर के प्रति वफादारी से बड़ी हो जाती है, और आप करप्ट काम करते हो, भ्रष्ट काम करते हो, यहोवा के संग नहीं खड़े होते, सत्य के संग नहीं खड़े होते, झूठ बोलते हो और करप्शन करते हो। तो क्या कहता है ये? इस राजा को पता है कि सच्ची नबूवत क्या होती है। कहता मुझे सच बता। तो क्या लिखा है? देन ही सेड, 16 वचन, देन ही सेड, आई डिड सी all Israel scattered upon the mountain as sheep that have no shepherd. And the Lord said, these have no master. Let them return therefore every man to his house in peace. And King of Israel said to Jehoshaphat, did I not tell thee that he would not prophesy good unto me but evil? तब जब यहोशापात राजा खुदा के सच्चे खादम मकाया से बेनती करता है कि मुझे सच बता, तो नबी बताता है दर्शन जो उसने देखा है कि इज़राइल तितर बितर हो गया, कोई चरवाहा नहीं रहा, सब कुछ लुट गया इज़राइल का। 17 वचन में लिखा है, वो दुष्ट राजा अहाब कहता, देखा मैंने कहा था ना ये बुरी नबूवत करेगा मेरे लिए। भाई और बहनों, वो बुरी नबूवत नहीं कर रहा है, वो सच बता रहा है। अभी भी तौबा का समय है, मुड़ जाओ। पर लोग मुड़ नहीं रहे। लोग पता क्या कहते, दोष ना लगाओ नहीं तो तुम्हारे पे भी दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर के कलाम को कैसे दुरुपयोग करते हैं, पाप में लिबड़े हैं, और उनसे कोई कहता भी पाप छोड़ दो तो कहते हैं दोष ना लगाओ, नहीं तो तुम्हारे पे भी दोष लगाया जाएगा। मैं एक बस के अंदर बैठा हूँ, उस बस के नीचे टाइम बॉम्ब लगा है, और मैं नीचे ध्यान करके देखता हूँ सीट के नीचे टाइम बॉम्ब है, फटने वाला है। मैं फटाफट बस से निकलता हूँ और चिल्लाने लगता हूँ, अरे बस के अंदर बॉम्ब है, बस के अंदर बॉम्ब है, बाहर आ जाओ। और बस के अंदर बैठे लोग मुझे कहते हैं दोष मत लगा हमारे ऊपर, तू हमारे ऊपर दोष लगा रहा है। दोष लगाओगे अपनी आंख का वो तिनका देखो, पहले लट्ठा देखो फिर तिनका निकालो। दोष ना लगाओ, अभिषिक्तों के ऊपर उंगली मत उठाओ। ऐसे झूठे कलाम यूज करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, झूठ के लिए यूज करते हैं। तो क्या कहता है 17 वचन, एंड द किंग ऑफ इजराइल सेड टू यहोशापात, डिड आई नॉट टेल दी, कि ये मेरे लिए अच्छा प्रोफेसी नहीं करेगा। अगेन ही सेड, देयरफॉर हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, I saw the Lord sitting upon the throne, and the host of heaven standing on the right hand and the left. And the Lord said, who shall entice Ahab, king of Israel, that he may go up and fall at Ramoth Gilead? And one spake, saying after this manner, and the other saying after that manner. And there came a spirit and stood before the Lord. And the Lord said, and said unto the Lord, I will entice. And the Lord said, wherewith? And he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, thou shalt entice him, and thou shalt prevail. Go out and do even so. खुदा का बंदा एक अद्भुत दर्शन देखता है कि यहोवा कहता है, यहोवा को मैंने सिंहासन पे बैठे देखा। यहोवा के राइट हैंड एक स्वर्गीय फौज, यहोवा के लेफ्ट हैंड एक दुष्ट आत्मा की फौज है। और यहोवा कहता है, कौन जाके भरमाएगा अहाब को? तो एक बदरू आके कहती है, मैं जाके भरमाऊंगी। तो यहोवा पूछता है, कैसे भरमाएगा? तो वो रूह कहता है कि मैं जाके अहाब के नबियों के मुंह में बैठ जाऊंगा, और नबी झूठी नबूवतें करेंगे।
और राजा रामोत गिलियद को जाएगा और वहां मारा जाएगा। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है जा ऐसा ही कर। 22 वचन, नाउ देयरफॉर बिहोल्ड द लॉर्ड हैड पुट अ लाइंग स्पिरिट इन द माउथ ऑफ दीज दाई प्रॉफिट एंड द लॉर्ड हैथ स्पोकन ईवल अगेंस्ट दी। ये नबी के अंदर जुर्रत है, रीढ़ की हड्डी है, गट्स है। ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ राइट इन द फेस ऑफ दैट ईवल किंग। He is fully aware of the consequences that this king can put me in the prison and even can chop off my head. But this true prophet of God is a true emissary of heaven. He must deliver the oracle of God. And he said, the Spirit will be sent, a lying spirit will be sent by the consent of the Almighty God, and that spirit will sit in the mouth of all these false prophets. For you have an army of the false prophets. They were government sponsored false prophets that King Ahab had. For Jezebel established a false cult of Babylon where Nimrod and Semiramis and their son Tammuz were worshipped. This evil is percolated all over Israel, and the same vicious evil is now reigning in the churches. लेकिन नबी के अंदर जुर्रत है। क्या कहता है नबी? नबी कहता है ये तेरे सब जितने नबी यहाँ बैठे हैं इनके मुंह में झूठा रू है। तब देखिए, देन ज़ेदकिय्याह सन ऑफ किनाहा केम नियर एंड स्मोट मकाया अपॉन हिज चीक। झूठा नबी खड़ा हुआ, ज़िदकिय्याह, जिसने पहले नबूवत की थी झूठी, लोहे का सिंह बना के राजा को कहा था ये सिंह से सब पुश कर देगा सीरिया को। झूठे नबी हैं वो झूठा नबी खड़ा हुआ। जब खुदा का सच्चा नबी सच्ची नबूवत कर रहा, राजा से नहीं डर रहा कि राजा क्या कहेगा। उसे राजा का रिवॉर्ड नहीं चाहिए। भाई और बहनों, सच्चे नबियों ने आपको गोल्डन पार्टनर नहीं बनाना, अपना डायमंड पार्टनर नहीं बनाना, सिल्वर पार्टनर नहीं बनाना। सच्चे नबियों को आपका पैसा नहीं चाहिए। सच्चे नबियों ने आपको फलाना पार्टनर, ढमकाना पार्टनर, यूथ पार्टनर, टीवी पार्टनर, ये पार्टनर, वो, ये सब मनी मॉन्गरिंग बिजनेस है। अब इसके ऊपर यहोवा की गाज गिर रही है। जजमेंट इज कमिंग। वॉच, इट इज कमिंग। वॉच, आई टेल यू, इट इज कमिंग। इट इज ऑलरेडी रिलीज फ्रॉम हेवन। यहोवा का सच्चा नबी क्या कहता है? यहोवा का सच्चा नबी कहता है गंदी रूह यहोवा ने अलाउ कर दी तेरे नबियों में। तो ज़िदकिय्याह खड़ा होता है जो पहले झूठी नबूवत कर रहा था। ज़िदकिय्याह खुदा के सच्चे दास के मुंह पे क्या करता है? थप्पड़ मारता है। और क्या कहता है? एंड सेड विच वे वेंट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम मी टू स्पीक अनटू दी। मकाया सच्चे नबी के मुंह पे भरी सभा में थप्पड़ मार के कहता है यहोवा का रूह मेरे ऊपर से होके किस रास्ते से तेरे पास आ गया भाई, तू जो नबूवत कर रहा है। ये फ्रॉड नबी हैं, झूठे नबी, और सच्चे नबी के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। देख रहे हो आप हाल? कहता है कैसे आ गया भाई मेरे को छोड़ के यहोवा का रूह तेरे ऊपर। अरे ज़िदकिय्याह, तेरे ऊपर तो कभी यहोवा का रूह था ही नहीं। तेरे ऊपर इबलीस का रूह था, शैतानी रूह था, खुदावंद का रूह नहीं था। तो पढ़े 24 वचन। एंड मकाया सेड बिहोल्ड दाउ शैल्ट सी ऑन दैट डे when thou shalt go into the inner chamber to hide thyself. Then the king of Israel said, take ye Micaiah and carry him back to Amon, the governor of the city, and Joash the king's son, and say, thus saith the king, put this fellow in prison and feed him with bread of affliction and with water of affliction until I return in peace. राजा, दुष्ट राजा क्या कहता है? कहता है इस नबी को जो सच्चा नबी है खुदा का, the one who has a spine, the one who has guts, the one who delivers the oracle of God in front of 400 false prophets, in front of the huge paraphernalia that king has, all the king's officers and king's advisors, everybody is there. But all this is happening in Gorain. Gorain is a threshing floor. Gorain is a place where judgment is being passed. The church stands in Gorain right now. The church of Jesus is standing in the Gorain. The church is in the threshing floor. And wheat and chaff are being separated.
This is sifting happening, brothers and sisters. This coronavirus has brought the sifting upon the church. पहले लोग लिख लिख के डालते थे ना, शनिवार को, सैटरडे को, कल चर्च लगना है, सारे चर्च में ज़रूर आना, प्रभु आपको बरकत देंगे चर्च में, ऐसे ऐसे स्लोगन आते थे। अब कोई लगाता नहीं है चर्च। मैं कई पास्टरों से पूछता हूँ, अरे भाई चर्च क्यों नहीं लगाते? क्या करना पास्टर जी, 5 लोगों की परमिशन है, 20 लोगों की परमिशन है, 10 लोग। अरे भाई वचन में लिखा है आपस में मिलना मत छोड़ो, जब तुम जानते हो बुरे दिन निकट आ रहे। आपको मालूम, ये परमेश्वर को भाया नहीं, इसलिए ये सब बंद करवा दिया उसने। नबी कहते हैं कि यहोवा अक गया है। Yahweh is fed up with your full moons and with your feast, with your festivals, with all the offerings, with all the flesh of the animal, with all the blood that you shed. God is fed up with that. God doesn't find any delight in that. प्रभु का बंदा सच्चे नबी को मारा जा रहा है, लेकिन यहोशाफाट राजा जो धर्मी है, सच्चे मार्ग पे चलता है, उसने अपोज नहीं किया इस बात को। फिर इसको सज़ा मिलती है, मैं कल सुबह बताऊंगा आपको। ही डिड नॉट स्टैंड फॉर द राइट थिंग, ही डिड नॉट प्रोटेक्ट द ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड, बिकॉज उसने गलत बंदे से दोस्ती की और फिर गलत बंदे से रिश्तेदारी की। अपना बेटा एक दुष्ट बंदे की दुष्ट बेटी से ब्याह दिया उसने। देखते हैं आप, आपकी अलायंस, आपकी फेलोशिप आपकी रिश्तेदारियों में बदलती है, और आप गलत रिश्तेदारियां करते हो क्योंकि आप संसारिक चीज़ों का लोभ देखते हो, प्रभु को नहीं देखते, प्रभु के पर्पस को नहीं देखते, डीएनए को नहीं देख पाते आप कि इसके अंदर डीएनए किसका है। मेरी फ्यूचर जनरेशन किधर जाएंगी? अगर मेरे बेटे की, इसकी बेटी से शादी हुई तो मेरी फ्यूचर जनरेशन किधर जाएंगी? क्योंकि आपको डीएनए रिकॉर्ड दिखाई नहीं देता। ए मैन हु वॉक्स इन द स्पिरिट विल बी एबल टू सी द record of DNA. There is a scroll inside every man and every woman. There is a divine spiritual scroll that is lying in the DNA. A spiritual man can see inside a person, a woman or a man, what kind of DNA scroll is there, whether my son is supposed to marry that man's daughter or not. यहोशाफाट ने पूरे इज़राइल, पूरे यहूदा के ऊपर बहुत बड़ा श्राप ले आया ये, क्योंकि ये किंग था। आपको मालूम, गॉड ऑलवेज गिव्स यू किंग्स एंड लीडर्स यू डिजर्व। जॉन कैल्विन सेड, व्हेन गॉड हैज मेड अप हिज माइंड टू पनिश अ नेशन, जज अ नेशन, ही विल गिव देम ईवल रूलर्स। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मकाया क्या कहता है? राजा कहता है इसको दुख की रोटी दो, इसको दुख का पानी पिलाना, जेल में ठूस दो इसको। तो मकाया क्या कहता है 27 वचन में? एंड मकाया सेड, इफ यू सर्टनली रिटर्न इन पीस, देन हैथ नॉट द लॉर्ड स्पोकन बाय मी। एंड ही सेड, हर्कन ऑल ही पीपल। सो द किंग ऑफ इजराइल एंड यहोशाफाट एंड किंग ऑफ जूडा वेंट अप टू रमोथ गिलियद। नबी कहता है अगर तू जिंदा वापस आ गया ना, तो मैंने यहोवा की ओर से बोला ही नहीं है। वो ये कहता है दूसरे शब्दों में, राजा अगर तू वापस आ गया तो मैं खुदा का बंदा ही नहीं। और ये जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, कुत्ते की मौत मरा ये राजा, जिसने खुदा के सच्चे नबी को जेल में डाला, कुत्ते की मौत मरा। माफ़ करना मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, पर सचमुच में ये कुत्ते की मौत मरा, क्योंकि ये मरा और इसके ब्लड को कुत्तों ने पी लिया, कुत्तों ने चाट लिया। कल सुबह 9 o'clock में इस मैसेज का दूसरा हिस्सा आपके साथ बांटोगे। बहुत सीरियस ग्रेव मैसेजेस हैं जो खुदा की ओर से हैं। प्लीज़ प्लीज़ इन पे मनन करें, इन्हें सुनिए, बार बार सुनिए और लिखिए इस वचन को, इस पे मनन कीजिए। ये इस टाइम के मैसेजेस हैं, इस समय के, ताकि आप शैतानी पिटफॉल से बच जाओ और परमेश्वर के सीधे मार्ग पे चलने पाओ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सुबह 9 o'clock में इसका अगले सेगमेंट पे हम बात करेंगे। प्रभु आशीष दे। जय यीशु मसीह की।